بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تازہ ترین احوال کشمیر سے متعلق جو ہے فالس فلیگ آپریشن کی تیاری ہے۔ فالس فلیگ کے لیے جو ہے نا وہ جعلی لوگوں کو جو ہے کشمیر پہنچایا جا رہا ہے۔ یہ فالس فلیگ کے اداکار کے ریاست پر حملہ ہو گیا، تیاریاں چیک کرے، بس کے تیاریاں چیک کرے۔ یہ بس کے اندر جو ہے نا ان کے کپڑوں پر جو ہے جعلی خون لگا کر جو ہے نا انہیں پہنچایا جا رہا ہے۔ اپنے لوگوں کو اس احتجاج کے اندر شامل کیا جا رہا ہے تاکہ جو ہے نا اس کے ذریعے لوگ پھر فالس فلیگ آپریشن کے تھرو معصوم عوام کا مزید قتل عام کر سکے۔ اس کی ویڈیو پہلے آپ دیکھ لیں۔ تو یہ ویڈیو آپ نے دیکھ لی ہوگی۔ اب ایک اور جو ہے جو خبریں ہے نا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایک خوفناک انکشاف، صبح نماز فجر ادا کر کے جو ہے نا وہ مسجد سے نکلے ہے کہ صبح جو ہے نا نماز فجر ہم نے مطلب ادا کیا اور مسجد سے نکلے تو رینجرز کی گاڑیاں آئی، ان پر بندوقیں فکس تھی اور ہم پر انہوں نے مطلب جو اسٹریٹ فائر کول دی۔ میرے آنکھوں کے سامنے نوجوان شہید ہو گئے۔ راولہ کوٹ میں ہونے والے زخمی نوجوان کی گفتگو۔ راولہ کوٹ کے اندر جو ہے نا کہ وہ ان کی جانب سے کہا کہ ہم نے فجر کا نماز پڑھا اور ہم جب مسجد سے باہر آئے تو اس دوران جو ہے نا وہ رینجرز کی گاڑیاں آئی اور جو گاڑیوں کے اوپر مشین گنز لگی ہوئی اس سے ہم پر فائرنگ شروع کر دی گئی، ہم مسجد سے باہر نکل آئے۔ یہ ویڈیو آپ دیکھ لیں پھر مزید خبروں پر آتے۔ ٹھیک ہے، بس صبح 5 بجے کا ٹائم ہوا، تقریباً نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلے نا، انہوں نے اسٹریٹ فائر کھول دیے ہیں۔ کافی بندے ہمارے زخمی بھی، میرے ساتھ ایک دو بیٹھے تھے وہ فوت ہو گئے، اور ایک تقریباً میرے خیال سے ایک تو یہ گورا لگایا نا، تو ایک کا صحیح کنفرم نہیں ہو رہا۔ اسٹریٹ فائر گاڑیاں آئی ہیں 2 رینجرز کی، اور وہ بند گاڑیاں تھی نا، تو بس انہوں نے گنیں لگائی ہوئی تھی گاڑی پر، انہوں نے چاروں طرف گنیں بس پھیرنا شروع کر دی ہیں۔ اچھا، تو وہاں پہ کس طرح کا سین تھا؟ کیا لوگوں نے واپس مزاحمت کی ہے؟ اور جی لوگوں نے بھرپور مزاحمت کی ہے، مقابلہ ڈٹ کے کیا ہے ان کا۔ پھر وہ کافی لوگ زخمی ہو گئے، پھر ایمبولینسیں وغیرہ آئی ہیں، انہوں نے جو زخمی تھے ان کو اٹھایا ہے۔ بندوں کو انہوں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کے مارا ہے، جدھر جدھر کوئی بندہ نظر آ رہا تھا نا ان کو، وہاں پر انہوں نے فائر کیا اس پر۔ تو یہ ہے کہ آپ کو پلنزی ہاسپٹل میں کون لے کے آیا؟ ایمبولینس ادھر سے منگائی ہے، ادھر سے انہوں نے بھیجا ہمیں سیدھا، جو ہے نا کیمپ لگے ہوئے ہیں ادھر، ان کو ہمیں بٹھایا ادھر ہماری ٹریٹمنٹ ہوئی ہے، انجیکشن وغیرہ لگے، تو جو زخمی تھے جو شہید بھی ہوئے ہیں تو ان کو بھی ساتھ لے گئے۔ تو واپس ادھر سے جو زیادہ سیریس تھے نا ان کو پلندری کی ایمبولینس پہ بٹھایا، ان کو لے گئے، کسی کو ڈڈیال کی ایمبولینس میں بٹھایا ادھر لے گئے، تو باقی 2 فوت ہو گئے ان کو بھی ایمبولینس میں بھیج دیا ہم نے۔ تو یہ ویڈیو آپ نے دیکھ لی ہوگی۔ تو یہ تمام تر چیزیں ہمارے سامنے اس ویڈیو کے اندر انہوں نے تمام تر چیزیں کھول کر رکھ دی ہے۔ مزید قافلے براستہ ہجرہ مطلب شہر اور راولہ کوٹ کی جانب روا دوا۔ یہ ہجرہ شہر سے قافلے گزرنے کے مناظر، یہ ہجرہ شہر جو ہے راولہ کوٹ کا علاقہ ہے، وہ جو ہے نا مطلب یہ قافلے گزرنے کے مناظر ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں عوام نے مطلب ان کا استقبال کیا۔ یہ لوگ آج راولہ کوٹ میں نماز فجر ادا کر کے مسجد سے باہر نکال رہے تھے جب ان پر گولیاں ماری گئی۔ یہ ظلم اب مٹنے کے قریب ہے، کہ یہ ظلم اب مٹنے کے قریب ہے۔ ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو کہتے ہیں نا کہ مٹ جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا جو میں نے آپ کے سامنے یہ خبر رکھی کہ نماز فجر انہوں نے ادا کیا اور جب وہ باہر نکلے تو معصوم لوگوں پر گولیاں چلا دی گئی۔ اور اس احتجاج کے اندر جو ہے نا یہ لوگ فالس فلیگ آپریشن کے لیے انہوں نے کچھ اپنے بندے بھی میدان میں اتارے، جس کی ویڈیوز بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ یہ فالس فلیگ کا تمام تر کھیل رچا جا رہا ہے، جو اپنے لوگوں کو مطلب وہاں پہنچایا جا رہا ہے بسوں کے اندر۔ اس کی ویڈیو بھی میں نے جو ہے آپ کے سامنے رکھ دی۔ تو یہ جو ہے تمام تر چیزیں ہمارے سامنے ہے۔ یہ دیوانہ جمرہ والے مرحوم عارف صاحب کے فرزند سبحان راولہ کوٹ دریق فورسز کی گولی لگنے سے شہید ہوئے تھے، ان کی نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم پر اپنے رحمت نازل فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی قربانی قبول فرمائے اور اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یہ جو ہے آمین۔ یہ دیوان جمرہ مرحوم
आरिफ साहब फरजन सुबहान उनके नाम है। ये जो है ये मतलब लीडरान जो थे उनमें से चंद लीडरान है वो शहीद हो गए और उनका बड़े पैमाने पर नमाज जनाजा जो है वो मतलब अदा कर दिया गया कश्मीर के अंदर जो है। ये रावला कोट के अंदर फोर्सेस के मतलब जो है ना जाली ऑपरेशन के अंदर वो लोग शहीद हुए थे और उनका बड़े पैमाने पर जो है वो नुकसान हुआ था। बड़े पैमाने उनके लोगों के मतलब नमाज जनाजा अदा किए गए। ये फॉल्स फ्लैग अदाकारी के ये जो है ना रियासत पर हमला हो गया, इसके लिए भी लोगों ने मतलब जो है ना तैयारियां कर रखी है। ये तैयारियों की ये तस्वीर आपके सामने जो वीडियो मैंने आपके सामने चलाई ना, तो उस तैयारी के अंदर जो है ना ये मसरूफ है। ये लोग अपने लोगों को वहाँ उतार कर उसके ज़रिए जाली फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाने चाहते हैं और जाली फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के अंदर मज़ीद कितने लोग शहीद हो गए, पहले कितने लोगों की शहादतें हो गई। बेपनाह जो मतलब इस तमाम तर केल को लीड करने वाले जो लोग हैं ना एहतजाज को, उनको भी शहीद कर दिया गया और इसके अंदर अब ये लोग अपने मोहरे उतारने की कोशिश कर रहे हैं। इस एहतजाज के अंदर ये लोग अपने मोहरे जो है ना वो इस एहतजाज के अंदर शामिल कर लेंगे और उसके ज़रिए फिर जाली फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होगा। तो ये जो है ना ये हमने आपके सामने खबरें रखी, ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे खबरें जो है ना फैल सके, इंतहाई तरीन खबरें, ताकि आवाम होशियार हो सके कश्मीर के अंदर। आज़ाद कश्मीर के 10 अजला तमाम जिलों में, शहरों और देहातों में दुकानें तीसरे रोज भी मुकम्मल बंद है और सड़कों पर ट्रांसपोर्ट गायब है। जिले बाग की सूरत हाल, ये बाग की सूरत हाल है कि तमाम अजला के अंदर जो है ना वो मतलब देहातों और दुकानें तीसरे रोज भी बंद है, सड़कों पर ट्रांसपोर्ट गायब है। अवाम जो है ना पूरे कश्मीर की वो एहतजाज के अंदर मसरूफ है, यहाँ तो कोई बोला नहीं। बेल आखिर कश्मीर से सरदार अमान को हमारे भी तर्जुमानी करना पड़ी। ये सरदार अमान जो आज़ाद कश्मीर के अंदर इनके रहनुमा उनकी जानब से जो है कहा कि यहाँ से कोई भी बोला नहीं, ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से तो कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। बेल आखिर कश्मीर से सरदार अमान ने पाकिस्तान की भी तर्जुमानी कर दी, मतलब कश्मीरी अवाम ने तमाम तर पाकिस्तानी अवाम की भी तर्जुमानी कर दी। यह तो कोई नहीं बोल रहा, जो बोलना चाहता है उसे जेल में डाला हुआ है, अवाम ने कर नहीं रही। तो सरदार अमान ने जो है ना वो पूरे पाकिस्तान की जो है ना कश्मीर समेत पूरे पाकिस्तानी अवाम की तर्जुमानी कर डाली। ये इंतहाई तरीन बात की गई है, पाकिस्तानी अवाम की तर्जुमानी उनकी जानब से की गई। वो पाकिस्तानी अवाम तो मतलब जो है खामोश तमाशा ही बन बैठी है। रावला कोट दरीक ईदगाह के मनाजर, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के कोर मेंबर का इजलास जारी, थोड़ी देर बाद अगला लाएमल का ऐलान करेंगे। ये जो है कहा गया कि थोड़ी देर बाद अगले लाएमल का ऐलान किया जाएगा। रावला कोट दरीक ईदगाह के मनाजर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के 2 जो कोर मेंबरान हैं उनके सरबराही में इजलास जारी है। थोड़ी देर बाद मतलब जो अगला लाएमल है उसका ऐलान किया जाएगा। तो ये हालात जो है हो चुके हैं। बाग का काफिला लाना निसार की क़यादत में बरास्ता तुलीपीर से रावला कोट के लिए जाते हुए बाग की जानब से जो है काफिले निकल पड़े तुलीपीर के रास्ते रावला कोट के लिए जो है ना ये मतलब लोग जा रहे हैं। तो ये जो है तमाम तर चीज़ें जो हमारे सामने ये वीडियोज़ मैंने आपके सामने जो पेश की है, तस्वीर आपके सामने चल रही है। अवाम जो है ना वो हार नहीं मान रही और ये अवाम की सबसे बड़ी फतह है। और अब पाकिस्तानी अवाम को भी कश्मीर से कुछ सीखना चाहिए, कश्मीरी अवाम से तमाम तर पाकिस्तानियों को मुत्तहिद होना होगा और अपने इंसानी हुकूक के लिए अपने जायज़ मुतालिबात पे लड़ना हो, पाकिस्तान को हकीकी मानों में आज़ाद कराना हो ताकि यहाँ अवामी नुमाइंदा आ सके, पाकिस्तान तरक्की पर गामजन हो। वरना पाकिस्तानियों का कोई मुस्तकबिल नहीं, पाकिस्तानी अवाम इसी तर्ज अमल से मरती रहेगी, मौत की बेच चढ़ती रहेगी, कोई उनका पूछने वाला नहीं होगा। एक तरफ मुज़ाकरात की बातें और दूसरी तरफ 4 अक्टूबर 2025 के मुआहदे के बाद जिन 177 FIRs को ख़त्म किया गया था उन्हें बहाल कर दिया गया। कि एक तरफ ये लोग मुज़ाकरात की बातें कर रहे हैं कि कश्मीरी क्यों नहीं बैठते, हमारे साथ बैठे मुज़ाकरात करें। दूसरी तरफ जो 4 अक्टूबर 2025 के मुआहदे हुए थे ना जिनमें 177 FIRs थे, उन FIRs को मुअत्तल किया गया था, उन FIRs को बहाल कर दिया गया। तो किस तरह मतलब जो है ना मुज़ाकरात हो सकते हैं। एक तरफ मुज़ाकरात का चूरन बेचा जा रहा है, दूसरी तरफ जो FIRs मुअत्तल किए गए थे 177 FIR उनको बहाल कर दिया गया। तो मतलब FIRs को जब बहाल कर दिया गया तो फिर कैसे मतलब वो इस तमाम तर चीज़ों पर मुज़ाकरात हो सकते हैं। ये इंतहाई तरीन बात है। गिलगित में 24 में से
23 सीटों पर हम लड़ रहे थे, 15 सीटों पे हमने वाज़ेह बरतरी हासिल की है। हमें सिर्फ 3 के फॉर्म 47 दिए गए। हम इस इलेक्शन को रिजेक्ट करते हैं और इस धांधली की मजम्मत करते हैं। यह बैरिस्टर गौहर खान का कौमी असम्बली में खिताब। गिलगित में हमने मतलब 24 में से 23 सीटों पर हम लड़ रहे थे, जिसमें जो है 15 पर हमें वाज़ेह बरतरी हासिल थी, लेकिन सिर्फ 3 के फॉर्म 47 हमें दिए गए हैं और इस इलेक्शन को मतलब हम रिजेक्ट करते हैं। इलेक्शन जो है हुआ, अवाम ने भरपूर मैंडेट दिया, लेकिन अवाम के मैंडेट की कोई औकात नहीं, क्योंकि इस इलेक्शन से पहले ये फैसला हो चुका है कि वहाँ भी जिस तरह वफाक में नवाज जरदारी गठजोड़, उसी तरह अमल से गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी नवाज जरदारी गठजोड़ बनाने की अब ये लोग तैयारी कर रहे हैं। तो मतलब इन इलेक्शंस की कोई औकात ही नहीं। इलेक्शन तो हो जाते हैं, लेकिन इलेक्शन की कोई औकात इसलिए नहीं कि जब तक पाकिस्तान हकीकी मानों में आज़ाद नहीं होता ना, तब तक इस तरह के इलेक्शन की कोई औकात नहीं होगी। पाकिस्तानी अवाम इसी तरह अमल से मरती रहेगी, जाली ऑपरेशंस की नज़र चढ़ते रहेगी, इसी तरह अमल से कश्मीरी भी मतलब जो है ना मरते रहेंगे और जाली ऑपरेशनों के नज़र चढ़ते रहेंगे, लेकिन पाकिस्तानी अवाम की कोई मुस्तकबिल नहीं। और कश्मीरी अवाम जिस तरह अपने मुस्तकबिल के लिए कड़ी हुई है ना, इसी तरह अमल से पाकिस्तानी अवाम को भी निकलना चाहिए और इनके खिलाफ भरपूर मुज़ाहमत करना होगी। इसके अलावा कोई चारा नहीं हो। पाकिस्तानी अवाम इस तरह अमल से मरते रहेगी, मौत की बेट चढ़ते रहे, कोई उनका पूछने वाला नहीं हो। गुज़िश्ता 34 हफ्तों से इमरान खान से मुलाकात नहीं कराई जा रही। इस मामले पर स्पीकर से रूलिंग चाहते हैं। आप कल तक फैसला करें कि हमारी मुलाकात कराई जाएगी या नहीं। बैरिस्टर गौहर साहब की जानिब से कहा गया कि गुज़िश्ता 34 हफ्तों से खान साहब से मुलाकात नहीं कराई जा रही। हम इस मामले पर स्पीकर से रूलिंग मांगते हैं और आप कल तक मतलब फैसला करें कि हमारी मुलाकात कराई जाएगी या नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार सादिक का जवाब, अगर वो मेंबर कौमी असम्बली होते तो इनका प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर देता। क्या अगर वो मेंबर जो है ना कौमी असम्बली होते तो उनका प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर देता। ये इमरान खान के बारे में उनकी जानिब से कहा। तो वो तो मेंबर कौमी असम्बली नहीं, वो तो प्राइम मिनिस्टर है। मेंबर कौमी असम्बली तो वो सबको पता है, तो प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन जो है जाली शब खून मारा गया और इस वक्त इनकी कोई औकात ही नहीं, क्योंकि पर्ची पर लिखा लिखाया फैसला आ जाता है, वो ये लोग सुना चाहते हैं, चाहे अदालतें हो चाहे स्पीकर हो, इनकी सिर्फ यही औकात है। मुलाकातों का एक सिलसिला शुरू कराया गया, 3 मुलाकातें भी कराई, आपने खुद वो सिलसिला तोड़ दिया। स्पीकर अयाज सादिक की जानिब से कहा कि मुलाकातों का एक सिलसिला हमने बहाल कराया, 3 मुलाकातें कराई गई, लेकिन आप लोगों ने फिर से वो मुलाकातों का सिलसिला खुद ही बंद करा दिया। अपोजिशन अरकान एहतजाजन ऐवान से वॉकआउट कर गए कि अपोजिशन अरकान एहतजाजन जो है वो मतलब वॉकआउट कर गए। इस वक्त इस तमाम तर चीज़ों की कोई औकात नहीं। इस वक्त जो है हुकूमत है, इनकी भी कोई औकात नहीं है, असम्बली की कोई औकात नहीं है। पाकिस्तान पर इस वक्त फ़िरऔन बैठा हुआ, यजीद बैठा हुआ, तमाम तर पाकिस्तानियों को उठना होगा। जिस तरह कश्मीरी अपने जो है ना हुकूक के लिए लड़ रहे, इसी तरह से पूरे पाकिस्तानियों को लड़ना होगा। पूरे पाकिस्तानी जब निकल आएंगे ना, 1 करोड़ अवाम भी सही मानों में निकले, तो पाकिस्तान आज़ाद हो जाएगा और अवाम खुद अपने फैसले कर पाएगी। पाकिस्तान खुद अपने फैसले कर पाएगा पाकिस्तान, वरना इसके अलावा कोई चारा नहीं है। पाकिस्तानी अवाम इसी तरह से मरते रहेगी, मौत के बेट चढ़ते रहेगी, कोई उनका पूछने वाला नहीं होगा।